उर्स मुबारक शहीदी हजरत सैयद अहमद मिया हजरत ಸೈಯದ್ ವಾರಿಸ್ ಮಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾವನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಮಿಯಾ ವಾರಿಸ್ ಮಿಯಾ ಸಂದಲ್ವಾ ಗಲೇಫ್ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವನೂರು ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪುಗರ ರಾತೀಬ್ ಜೊತೆ ಮರಳಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಲೇಫ್ ವ ಚಾದರ್ವನ್ನ ಗಂಧದ ಸಮೇತ ಫಾತಿಹಾ ಖಾನಿ ಓದುತ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದೇವರ ಪವಾಡವು ಏನೆಂದ್ರೆ, ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಮಿಯಾ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ವಾರಿಸ್ ಮಿಯಾ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ ಫನ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರುಗಳು 2 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದು ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಸಾವನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮೇವನ್ನ ಮೇದು ಬರ್ತಿದ್ವು. ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ 2 ಕುದುರೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದುದನ್ನ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಗಮನಿಸಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಆ ಜಮೀನು ಸಾಹುಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕುದುರೆಗಳು ಸಾಹುಕಾರನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮೇವನ್ನ ಮೇಯ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನ ಜನರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಸಾಹುಕಾರ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು. ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶಹೀದಿ ಅಹಮದ್ ಮಿಯಾ ವಾರಿಸ್ ಮಿಯಾ ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡಿದರು. ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಮನೋಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಬಯಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ತೂಕದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ರೂಢಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಯಾದ್, ಸೈಯದ್ ಜುಲಾನಿ ಪೀರಾ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಮಸ್ದಿಕ್ ಹುಸೈನಿ ಫಿರಾಮ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಖಾದ್ರಿ ಪೀರಾ, ಸೈಯದ್ ಫೈರೋಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ರೆಹಮಾನ್ ಫೀರಾ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ನದೀಮ್ ಫೀರಾ ಖಾದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಶಬೀರ್ ಭಾಷಾ ಕಥೀವ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸಾಕ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಅವರು ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪವಾಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುನಾ ಗೌಡ್ಗೇರಿ, ಜೀವನದ ನೆರಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಸವನೂರು. सलासिल अरबा व अइम्मे अरबा की बारगाह में इसका सवाब दिए कबूल फरमा। सरकार की रानी की रोशन ज़मीन हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह नाम में इसका सवाब दिए कबूल फरमा। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु की बारगाह नाम में इसका सवाब दिए कबूल फरमा। तमाम सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, शफिया, मामूरिया, रज़विया, मुनव्वरिया, जलालिया, शाज़लिया, शुत्तारिया, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की बारगाह में इसका सवाब कबूल फरमा। बिलखुसूस इस फातिहा का सवाब सरकार सैयदना अहमद मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार सैयदना वारिस मियां रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह नाज़ में इसका सवाब हदियतन नज़र कबूल फरमा। जमी आपके खुलफा मुरीदीन और औलादन की बारगाह में इसका सवाब हदियतन नज़र कबूल फरमा। इनके तवस्सुल तमाम औलियाए कामिलीन की बारगाह में इसका सवाब हदियतन नज़र तो कबूल फरमा। तमाम महबूबीन के वसीले कुल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। मौला तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तेरे महबूबाने किराम का वास्ता वसीला बिलखुसूस साहिब मज़ाद का वास्ता वसीला मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। सबके हदिये खुलूस मोहब्बत व नजराने को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा कर जितने में हाजिर आए हैं इस फातिहा में उर्स शरीफ में मौला सबों की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। मौला सबों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। मौला बिलखुसूस 5 वक्ता नमाज का की पाबंदी नहीं है मौला, हमारे दामन को शरीयत मुतहर्रा से भर दे, हमें नमाज का पाबंद बना, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, फिर भी तेरी महबूब की उम्मत में है मौला,
तेरी सत्तारी व गफ्फारी, तेरी शान करीमी व रहीमी का वास्ता इस वली कामिल के सदक़े में हमें मुआफ़ फरमा। खता हमारी खताओं को दर्द दे, क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार वक़ीना अज़ाबल क़ब्र वक़ीना अज़ाबल हश्र वक़ीना अज़ाबस सकरात वक़ीना अज़ाबद दारैन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि ये छोटे सरकार 40 किस चीज की मतलब यानी दीन की दुनिया की हर तरीके की मतलब जिस जैसे लोग जिस जो अपने जो जरूरियात होते हैं, जैसे ही साहिब हजरत के सामने बाबा सोच रख रहे अपनी फरियाद पेश करते हैं तो पूरा करने की हजरत में ताकत है। बच्चा ऐसा अगर आने वाले दिन में भी अगर किसी को जरूरत है तो साहिब सज्जादा को आगे तला दे। अहमद मियां वारिस में हमें अता किया है कि अगर हम उनकी खिदमत कर सकें। वो बात अच्छा नहीं कर वो आप जो बीमार है, जो मुराद है, मुराद पूरी होने के लिए वो आप मुझे उठाते हैं। मुरी हुए ये हुए के बाद मुराद पूरी हुए के बाद वो गोला ले जाकर उसके वजन का गुड़ ला कर पाँचा पानी करके आपका इसमें शाह मोहम्मद जुलान पीना हुसैन का मशीन साजिश आप जो मैं इस बच्चे को खिलाफत देकर और सजा भी दिए हम मेरे सामने अब यही मुझे सजा आज से 2 महीने से हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर लंगर बनाया जाएगा। कोरोना के जब की तरह बंद हो रहा था वो आप हम करवा कर सोचे हमने किया हुआ इनकी सब इनकी औलाद कहाँ पर है। मेरा नाम सैयद सिद्दीक तेरा हुसैनी कादरी जानशीन बारगाह हजरत सैयद शाह अहमद मियां कादरी वारिस मियां कादरी शहीद सादत शानुर शरीफ और मेरे दादा किबला मेरे पीर मुर्शद मेरे दादा हजरत जो 40 साल से यहाँ सज्जादा नशीनी के मसनद पर रहकर खिदमत कर रहे हैं। उनका नाम हजरत सैयद शाह मोहम्मद जिलानी पीरा हुसैनी कादरी सज्जादा नशीन बारगाह शानुर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह। तो आज सरकार का संदल शरीफ हुआ है और कल सुबह उरस है। आज बच्चा सरकार सादात शानूर शरीफ और शहीद बुजुर्ग तो हजरत की जो शानूर की रिवायतों में से एक रिवायत है जो घोड़े की करामत यहाँ पर बहुत मशहूर है। जो सरकार अपने जो थे तो हजरत के जो छोटे भाई थे हजरत अहमद मियां वारिस मियां रहमतुल्लाह अलैह जो थे एक कहीं सफ़र में निकले थे। तो वो सफ़र में निकले वक्त उस वक्त अपने घोड़ों को एक बाग में छोड़कर चले गए। तो वापस आने के बाद उनके चेहरे देखकर हजरत ने पहचान लिया कि घोड़े खाना नहीं खाए थे। तो आने के बाद इत्तला कर ली कि उस बागीचे वाले को बात करो कि उसकी रोज़ी क्या है। तो उन्होंने जब इत्तला दी कि ये रोज़ी जिसके हराम सूद का कारोबार करता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब मेरे घोड़े सूद के कारोबार के बागीचे में भी खाना नहीं खा सकते, तो इसी बात के ऊपर जब वो जो नॉन मुस्लिम आदमी था तो क्या है उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो हमारे मुसलमान धर्म के अंदर खासकर सूफीज़म में कोई जात पात भेद धर्म हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं होता। ये सब हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा साहब की ये सीख है, ख्वाजा साहब की ये नसीहत है कि बारगाहों में हर हिंदू मुसलमान भाई हर तरीके के मजहब वाले, क्योंकि यहाँ लंगर आम चलता है, ये हर तरीके के हर मजहब वाले लोगों को यहाँ पर दरवाजे खुले हैं। मैं सबको हिंदू मुसलमान भाइयों को तमाम शानूर के लोगों को हमारे दादा किबला की तरफ से मैं जो है शानूर शरीफ के हमारे दादा हजरत के संदल की और हमारे सरकार के कल उरस की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आप सबका तमाम ही लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, जैसे कि हमारे मौलाना है और जितने भी लोग हमारे अली मोहम्मद साहब की फैमिली है और हमारे जितने भी लोग इसके अंदर हिस्सा लिए पहलवान भी हैं, हमारे इसाक कदीर वाले हजरत की जो पोते थे, ये हजरत जो है शानूर की एक जंग में शहीद हुए थे। तो इस्लाम की एक जंग थी, उस जंग में बाबा सरक रहे सरकार के जो पोतरे थे उनके फर्जंद बंगापुर में शहीद किए गए। बंगापुर में शहीद किए गए तो वो जो है उनकी जो बीवी थे तो बीजापुर को तशरीफ लाए हम। तो बीजापुर को जो तशरीफ लाए हजरत चांद बीबी माँ साहिब सगे पोतरे जो है हमारे दादा के दादा हैं सगे, जो जिनका नाम
तुम्हें ये कर रहा हूँ यहाँ धक्का लगा चुप चुप ये सरक रहे तू सरक रहे पापा तुझे बड़ो सरक बे आने का नहीं तू आ हाथ को धक्का लगाऊंगा आता का तू क्या करना इस्लाम में जो फ़राइज़ हैं, जैसे नमाज, ज़कात, तमाम फ़राइज़ को अदा करने के लिए सबसे हलाल ही हमारी नमाज़ें, हमारे हमारे सब। तो जैसा कि बुजुर्गों ने यही हमें पैगाम किया, आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी वाला है, आपकी बारगाह में होने वाले बड़ी बड़ी आलम है कि वो जो है हराम सारे जो है वो नहीं लगाते। इंसानियत किया है रोटी से आप मत कमाओ, भाई बड़े सरकोस तुम्हें धोखा देकर बड़े न कमाओ, और जो है वो हलाल खाओ, चाहे तुम्हें इसमें यहाँ जरकने वाले मम्मो क्योंकि हम इनो इनो मजे जिंदा रहने के लिए हाँ उनको सुन बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि जब तक रहे हम अल्लाह के पैगाम को आम करें, और सबसे बड़ा पैगाम बड़े देखो किस सरको में है अल्लाह वालों ने मोहब्बत गुलजार वो सरका जिनको हर एक जो है हम मिलजुल गुलजार भाई इनको सरका जी हमारे अपने अखलाक जो है चलो जरा देखो ते जभी तो जो है हमारी सही जो है जाहिर हो। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि हम ज़बान से न बताएं कि मैं फलां हूँ फलां हूँ फलां हूँ, ऐसा न बताएं, बल्कि हम ऐसे बन जाएं, हमारा किरदार देख करके कहें कि ये वाकई में जो है अल्लाह वालों के चाहने वाले हैं और ये अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। बस इतना हलाल और हराम के अंदर इससे मालूम होता है कि कितनी परहेजगार थी। इस उर्स के मौके पर हम शहनूर वालों को तमाम को हज़रत ने जैसा बताया, सबसे पहले इबादत, उसके बाद तिलावत, उसके बाद जिक्र, ये तमाम, और साथ ही साथ सबसे मेन बात क्या है, हलाल रोज़ी कमाओ, हलाल रोज़ी खाओ। ये हज़रत का जो उर्स मुबारक चला है, ये उर्स मुबारक, इनका घोड़ा हराम की कमाई, हराम की रोज़ी को, हराम के खाने को मुंह तक नहीं लगाया। ऐसी निस्बत लेते हो मोहब्बत के साथ। जो सरका जरा जो पहुंचा ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅವರು ಹುಡುಗಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವರು ಬೇರೆದವ್ರು ಹೊಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹುಡುಗರು ಅದು ಟೋಟಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತಾವ, ಅದು ಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಹುಡುಗಿ ಪವಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಅದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರ್ ಖಾನ ಈ ಕುರ್ಸಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಟ್ರಂಗ ನರಸಿಂಹ ಹಿರಿಯರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सरका जब भारत सरका समझ जाता हूँ सरका पीछे से सरका जी ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳದ್ದು ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.